Good evening to all. So, how all are you doing? Enjoying your therapies and treatments? Very good. You liking the diet section here? Diet on? How many of you are liking the diet? Okay, majority of the people are liking it. It's fine. You must be feeling some changes, no? Losing weight. Not lack of food, actually, you are eating in adequate amount what is needed for your body to survive. Yeah. This is the importance what you need to eat and when you need to eat ना like जब आप समय अनुसार भोजन करते हैं तो इसका यही परिणाम होता है, इसका यही रिजल्ट होता है कि भूख कम हो जाती है और जो मेटाबॉलिज्म है वो करेक्ट होता है बॉडी का. दिस इज द बेस्ट थिंग क्योंकि टॉक्सिन्स निकल रहे हैं ना बॉडी से, दैट्स व्हाई. ओके. सो आई गेस आप लोगों ने काफ़ी वात पित्त कफ के बारे में जान लिया होगा. So if any one of you can tell me about Vat Pitta Kapha, it will be easy for me to deliver from where we need to start. How much understanding do you have about Vat Pitta Kapha? It would be easy then. So any one of you, if you can tell me what is Vata with Pitta and Kapha, what do you understand in earlier sessions? Huh. Please. The Vata, Pitta, Kapha, Yeah. three dosa. We need to balance. We have to keep it in a balance. We need them to maintain our health. So Vata is related to the like arthritis, anything to do with the Vata. The wind element, the Akas, space. Sorry, this Vata, yeah. Element, yeah, vata. So it will, like if it gets imbalanced, you can have the pains and aches in joints and stomach as well. Acidity, gas, sort of, all of these things, headaches, migraine, sort of. So this is vata. Pitta is like acidity, like you feel reflect sort of thing. The hair starts falling and yes, that sort of thing, vata, napita. And kapha is like, respiratory, system, gets blocked and, have lots of, mucus and, coming and that sort of thing. But we do need them to keep our body in balance. Very nice. But these are all the symptoms of vitiated doshas. Not the doshas in the balance state. And before understanding about the vitiation of the doshas or the दोष प्रकोप जो आयुर्वेद में बोला जाता है जिसके कारण बीमारी होती है, किसी भी डिसीज का ऑनसेट जब होता है तो तीनों दोष में से कोई एक दोष का प्रकोप जरूर होता है, विटिएट जरूर होता है, वन ऑफ द थ्री दोषास. So before understanding that, it is important for us to understand what are the normal functions of Vata Pitta Kapha in body. And we know that Vata is understood, it is air. And Pitta is understood, it is fire. And Kapha is understood, it is the water element in the body. But what does actually the Vata does? How the nature of Vata is, how the nature of Kapha is, how the nature of Pitta is, that we need to understand. So if any one of you know that, yeah, definitely it is more extensive than that. But being a layman, being not an Ayurvedic practitioner, it is a very good understanding about the Vata Pitta Kapha. I appreciate you for this. Yeah, you want to say something? Yeah, so I think Vata, when it's in balance, it's like usually they say if you're Vata, you're a leader because you can give you're a very clear thinker, and they say when Pitta's in balance, they're very good talkers. They're very warm and very good at talking. And Kapha, I don't know. Yeah, Kapha is more earthy, but I don't know when it's in balance. I think it's quite courageous and brave. Does that sound about right? So I think like, you all have superficial understanding of Vata Pitta Kapha. So let's begin with what is Ayurveda is all about. Okay. So Ayurveda is basically the very precise definition of Ayurveda is Ayurvindanti iti Ayurveda. जिस शास्त्र में आयु के विज्ञान का वर्णन है वह आयुर्वेद है. अब आयु एज जो होती है वो मतलब लाइफ जो होती है वो दो तरह की हो सकती है. यू कैन लीव अ हैप्पी लाइफ और यू कैन हैव अ मिजरेबल लाइफ ड्यू टू डिसीजेस और एनी अदर थिंग, स्ट्रेस और डिप्रेशन, एनी काइंड ऑफ दोज थिंग्स ना. तो इन सब कंडीशंस का जिस शास्त्र में वर्णन है दैट इज आयुर्वेदा.
एंड आयुर्वेदा में जो आयुर्वेदा की चिकित्सा पद्धति है उसमें बेसिकली त्रिदोषास पे फोकस किया जाता है। तो 3 दोष होते हैं, सप्त धातु होते हैं और त्रिमल होते हैं, ठीक है ना। तो त्रिदोषास जो होते हैं, पहले सप्त धातु से शुरू करते हैं। सप्त धातु मतलब 7 धातुएं होती हैं, 7 धातुस। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, all these are Sanskrit terminologies, you may not get it, but just listen it, you'll get along with it. धातुएं जो होती हैं वो शरीर को धारण करने का काम करती है। बेसिकली व्हाट यू आर सीइंग ना, आपका बॉडी का फिजिक, आपका स्ट्रक्चर, आपकी बोन्स, आपके टीथ, आपके हेयर्स, ओके, द ब्लड इन योर आर्टरीज एंड वेसल्स, द लिम्फ फ्लूइड, है ना, द फैट इन योर बॉडी, ओके, योर बोन मेरो, एवरीथिंग दिस इज धातु। तो these are of 7 kinds: rasa, rakta, mansa, meda, asthi, majja and shukra. And then comes the tridoshas: vata, pitta, kapha. So basically 7 धातुएं और त्रिदोष, इनको बैलेंस स्टेट में रखने का काम, सम अवस्था में रखने से ही एक शरीर की, एक बॉडी की हेल्दी स्टेट बनी रहती है। और अगर ये धातुएं दूषित होंगी या टॉक्सिन्स डिपॉजिट होंगे, धातुओं की क्षय या वृद्धि होगी। क्षय मतलब डिप्लीट होना और वृद्धि होना मतलब एक्सेस हो जाना। जैसे ओबिसिटी है, तो ओबीस में क्या होता है, मेद धातु की आपको वृद्धि हो जाती है ना, तो फैट डिपोजिशन हो जाता है। मेद रिप्रेजेंट्स द फैट इन योर बॉडी, तो मेद धातु की वृद्धि हो जाती है, मेद बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली डिपॉजिट हो जाता है बॉडी में, देन इट कॉज द ओबिसिटी। तो ऐसा नहीं सिर्फ दोषों को ही हमें समावस्था में रखना है, हमें धातुओं को भी समावस्था में रखना है। जब हम एक दैनिक दिनचर्या फॉलो करते हैं, एक लाइफस्टाइल, आप एक हेल्दी बैलेंस्ड लाइफस्टाइल को जब फॉलो करते हो, तो यू नीड टू सी दैट योर धातुज आर ऑल्सो गेटिंग प्रॉपरली नरिश्ड एंड न्यूट्रिशन अलॉन्ग विद द दोषास। वो उसका जो एनालिसिस होता है वो बहुत डीप एनालिसिस होता है, इसलिए अभी हम त्रिदोषास पे बात करते हैं। तो देयर कम्स द त्रिदोषास। 3 दोष होते हैं। देखिए, दोष शब्द ही है ना, जो दूषित कर रहा है वो दोष होगा, है ना। तो जो शरीर को दूषित करता है उसको हम दोष कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। वात पित्त कफश्च उक्त त्रयो दोषा समासता। शरीर के 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ, और ये तीनों शरीर को दूषित करने का काम करते हैं, ठीक है। तो वात यू ऑल नो द एयर एलिमेंट ऑफ द बॉडी, पित्त यू नो द फायर एलिमेंट, एंड कफ यू नो द वाटर एलिमेंट इन द बॉडी, ठीक है। एंड देन कम द मल पार्ट, मूत्र, पुरुष एंड स्वेद। स्वेद, आप सब लोग अभी थेरेपीज ले रहे हैं तो स्वेदन हो रहा होगा आप सभी का। किसी ने सर्वांग वाष्प स्वेदन लिया होगा, किसी ने पत्रपिंड स्वेदन लिया होगा, किसी ने नाड़ी स्वेदन लिया होगा। तो उससे क्या कर रहे हैं, आपको डिटॉक्स कर रहे हैं। जब आपको स्वेटिंग कर रहे हैं तो आपके जो पोर्स हैं स्किन में, उसके थ्रू स्वेटिंग करके जो टॉक्सिन्स डिपॉजिट है बॉडी में उसको बाहर करने का काम कर रहे हैं, है ना। So that is mal part in your body ना, which and we are detoxifying it with the स्वेदन चिकित्सा। तो नाड़ी स्वेदन, सर्वांग वाष्प स्वेदन, इस तरह के ट्रीटमेंट्स आप लोग ले रहे हैं ना। वात पित्त कफ, और फिर मल पे बात कर रहे थे हम, तो मूत्र, पुरुष और स्वेद। तो मूत्र इज द यूरिन। आप लोगों ने ऐसा फील किया होगा जब 7 डेज में आप डिटॉक्स करते हैं तो यूरिन और मोशंस की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है थोड़ी, है ना, क्योंकि वो शरीर का मल है। जब तक आप शरीर से मल को बाहर नहीं करेंगे, शोधन कैसे होगा। कोई रूम होता है, एक रूम है, उसमें बहुत गंदगी हो रखी है, बहुत डस्ट हो रखी है ना। तो उसको आपको अगर हटाना है तो यू नीड टू क्लीन इट ना। तो दैट डस्ट ना, दैट मल यू नीड टू गेट आउट ना, उसको आपको बाहर करना पड़ेगा। तो डिटॉक्स के लिए फिर इस तरह की ट्रीटमेंट्स की जाती है। एनिमा थेरेपीज आपको दी जा रही होंगी, शंख प्रक्षालन, कुछ लोगों ने कोलोन हाइड्रोथेरेपी भी करवाई होगी। कितने लोगों ने करवाई कोलोन हाइड्रोथेरेपी? हाँ, कैसा लगा आप लोगों को कोलोन करवा के? ग्रेट, या इट्स अ गुड थेरेपी। अब आपको लाइट और फ्रेश क्यों लग रहा है? क्योंकि टॉक्सिन्स शरीर से बाहर निकल गए ना। तो हम फोकस करेंगे त्रिदोषास पे। सप्त धातुएं होती हैं, त्रिदोष होते हैं और मल होते हैं। मल जो शरीर को मलिन करते हैं, गंदा रखते हैं, है ना। दोष शरीर को दूषित करते हैं, और धातुएं जो होती हैं वो शरीर को धारण करने का काम करती हैं। तो अलग अलग दोष के लिए अलग अलग आचार्यों ने गुण धर्म बताए हैं,
अलग अलग उनके बेनिफिट्स हैं, उनके गुण हैं और उनके एक्शंस हैं। जब प्राकृत अवस्था में दोष रहते हैं तो उनके कर्म जो होते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। जैसे भी आप में से एक ने बताया था कि अर्थराइटिस होता है, जब वात होता है तो अर्थराइटिस होता है। अर्थराइटिस तब होता है जब वात आपका विकृत अवस्था में होता है, विटेटेड स्टेट में होता है। ठीक है, प्राकृत अवस्था में तो धातु दोष मल तीनों का शरीर में होना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ईच ऑफ देम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं मल है तो उसको पूरा शरीर से बाहर कर दें, ऐसा नहीं होता। मल भी शरीर के लिए जरूरी होता है, धातु भी जरूरी होती है, दोष भी जरूरी होते हैं, बट दोष शुड स्टे इन बैलेंस स्टेट, विच इज इम्पॉर्टेंट। और थ्रू आउट द सेशन हम यही समझने का कोशिश कर रहे हैं। आप 7 दिन का जो नेचुरोपैथी सेशन लिए, ये वेलनेस का सेशन लिए, इसमें यही समझाने का प्रयास किया गया है आपको कि कैसे आपको आपकी बॉडी की कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या डाइट एंड रूटीन फॉलो करना चाहिए। तो हम वात के गुण पे फिर सबसे पहले चर्चा करते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट द वात। ओके, तो आचार्य ने बोला है तत्र रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्मश्चलो अथ विशद खर। दिस इज अ श्लोका इन आयुर्वेदा विच इज वेरी कॉमन। इसमें वात दोष जो एयर एलिमेंट है बॉडी का, उसके 6 गुणों के बारे में बताया गया। तो क्या क्या होते हैं 6 गुण? रुक्ष, शीत, सूक्ष्म, लघु, चल, विशद, खर। ठीक है, तो सूक्ष्म मतलब क्या होता है? हाँ, इट इज वेरी स्मॉल, वेरी वेरी टाइनी इन नेचर, मतलब हाँ, सटल, सटल। एंड रुक्ष, ड्राइनेस। अभी विंटर्स आ रहे हैं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आप स्किन को ऐसे स्क्रैच, ऐसे अपनी स्किन को स्क्रैच करके देखिए, तो दैट इज द ड्राइनेस इन योर बॉडी, है ना। अब ये तो अभी आपको सबके स्किन पे मिलेगी, क्योंकि ये सीजन के कारण है, ऋतु अनुसार है ये। पर जो वात प्रकृति लोग होते हैं, उनके स्किन में, उनकी त्वचा में स्वभाव से आपको ये रुक्षता देखने को मिलेगी, ये ड्राइनेस आपको मिलेगी। कुछ लोग होते हैं ना जो बोलते हैं डॉक्टर साहब ना मेरी स्किन ही बहुत ड्राई रहती है, आई हैव वेरी ड्राई स्किन, व्हाट शुड आई डू? दैट मीन्स दैट वात दोष इज देयर। अब वो अगर बहुत ज्यादा है एंड इफ इट इज ट्रबलिंग यू, देन इट इज गोइंग टू विटिएटेड doshas, बट सम ड्राइनेस हैज टू बी देयर इन स्किन ना, दैट इज बिकॉज ऑफ वात। उसके बाद में वात रुक्ष शीत, शीत मतलब कोल्ड इन नेचर। वात का जो टेंडेंसी होता है वो कोल्ड होता है। आप कभी भी देखेंगे, जब भी आपको बहुत ठंडी हवा लगेगी तो बहुत स्टिफनेस हो जाती है। जो वात प्रकृति लोग होंगे वो इजीली इस चीज को कोरिलेट कर पाएंगे, है ना। तो क्योंकि जहाँ भी आपका वात का, क्योंकि नेचर कोल्ड होता है, तो आप जब भी कोल्ड एनकाउंटर करेंगे तो तुरंत से स्टिफनेस आती है, वो तुरंत जकड़ देता है वात उसको। ठीक है ना। वृक्ष शीत लघु खर, खर मतलब इट इज वेरी रफ इन नेचर। वात जहाँ जहाँ रहेगा बहुत रफनेस रहेगी। जैसे आपके ड्राई लिप्स हो जाते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं? रफ हो जाते हैं। हील्स ड्राई हो जाती हैं तो कैसा हो जाता है? क्रैक्ड हील्स हो जाती हैं, रफ हो जाता है ना वो। तो दैट इज हाउ खर इज। एंड लघु, लघु तो बहुत, इट इज वेरी लाइट इन वेट। एंड विशद, इट मीन्स इट इज वेरी हार्ड, जो हार्डनेस रहती है उसमें वो विशद गुण के कारण रहती है। तो अब आपको कोई बोले कि वात से आप क्या समझते हो, तो आपको उनको बताना है कि वात मतलब एयर एलिमेंट होता है बॉडी का, वायु शरीर में जहाँ जहाँ वायु है वहाँ वहाँ आपको ये गुण देखने को मिलेंगे। वो सूक्ष्म होता है, इसलिए आपकी जितनी छोटी छोटी चैनल्स है, आर्टरीज है, वेसल्स है, कैपिलरीज है, सब में वात है, जॉइंट्स में वात है। ठीक है ना। लघु होता है, इसलिए कुछ लोग बोलते हैं ना, बोले भाई तू बहुत एनर्जेटिक रहता है। आप वैसे भी अगर कंपेयर करेंगे तो कुछ लोगों का जो बॉडी फिजिक होता है दे आर वेरी हैवी, और कुछ लोगों का जो बॉडी वेट होता है, फिजिक जो होता है वो बहुत लाइट वेट होता है, बहुत मीडियम होता है उनका वेट। तो क्यों, आप उससे भी अंदाजा लगा सकते हो कि इनका जो टेंडेंसी है वो वात का टेंडेंसी ज्यादा है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप, अब आपसे कोई पूछेगा तो आपको बताना है कि नहीं वात का गुण क्या है, तो इट इज लाइट इन नेचर, it is cold in nature, it is rough, it is hard. Okay, it can travel into very small vessels and channels. Okay, and it is dry in nature, most important, dryness in the nature. Then comes the pitta, तो सस्नेहम तीक्ष्णम उष्णम लघु विस्त्रम सरम द्रवम कटु।
ये पित्त के गुण होते हैं. दिस इज अगेन द श्लोका. तो पित्त जो होता है इट इज फायर. अब आप इमेजिन करो, जब मैं आपको बता रही हूँ कि पित्त के बारे में, वात के बारे में आप इमेजिन करो, तो वात को आप इमेजिन करो. यू शुड बी वेरी क्रिएटिव एंड यू शुड फील द एयर. कि आप जब खड़े होते हैं और आप एयर को कैसा फील करते हैं, हाउ डू यू फील अबाउट इट. जब भी आप किसी ऐसी जगह खड़े होंगे जहाँ पे बहुत तेज हवा चल रही होगी, यू कैन सेंस, आपको एक अलग तरह की ड्राइनेस उसमें सेंस होती है ना. लाइकवाइज जब हम पित्त की बात करेंगे तो फील द फायर. जब हम आग के सामने, या कैंप फायर, बॉन फायर सबने किया होगा लाइफ में, तो जब आपने बॉन फायर किया होगा तो आग के सामने बैठ के आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है. यू फील गुड. नहीं, ऐसा नहीं है. जब हम आग के सामने या जब हम बैठते हैं बॉन फायर के सामने, तो हमको फील होगा कि वो बहुत गर्म फील होता है. एंड वेरी इमीडिएटली यू स्टार्ट फीलिंग हॉट एंड वार्म. एंड देन थोड़ी देर बाद आपको जलने लगता है, और आप फिर तब हाथ नहीं उठाएंगे तो वो जल भी जाएगा. That is how the fire is. That is how the pitta is. That is why it is the fire element in body. जितना भी मूवमेंट होता है ना बॉडी में, मैं बोल रही हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, आपकी ये पलकें झपक रही हैं, आप सब सांस, मैं भी आप सबके साथ में जो हम सांस ले रहे हैं, मैं बोलती हूँ और आपको कुछ समझ आता है, आप ऐसे करते हैं. दिस ऑल बिकॉज ऑफ वाट. ओके. एंड पित्त, पित्त का क्या रहता है? ऑल योर मेटाबॉलिज्म, ऑल योर डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज पित्त. बेसिकली पित्त इज द फायर इन द बॉडी. आप लोगों में से कभी चूल्हा देखा है आप लोगों ने? है ना? या स्टव देखा है? तो स्टव, चूल्हे में क्या होता है? हाँ. अब वो जो अग्नि होती है, आपने स्टव को ऑन किया, उसका उसमें से फ्लेम निकल रहा है. आपने एक वेसल रखा, उसमें आपने खाना बनाना है, दैट इज ओके. अब आपने फ्लेम बहुत हाई कर दिया, क्या होगा? जल जाएगा. अब आपने फ्लेम बहुत कम कर दिया तो पकेगा नहीं. दैट इज हाउ द फायर एलिमेंट फंक्शंस इन योर बॉडी. वेरी सिंपल. जो लोग कुकिंग करते हैं उनको बहुत जल्दी समझ आएगा. तो अग्नि किस तरह से काम करती है, सबसे पहले उसके गुण हम डिस्कस कर लेते हैं. कि पित्त जो होता है वो तीक्ष्ण होता है. तीक्ष्ण मतलब इट इज वेरी शार्प इन नेचर, है ना. उष्ण होता है, उष्ण इज हॉट इन नेचर. जैसे वात कोल्ड है, वैसे ही पित्त जो उसके एकदम अपोजिट हॉट टेंडेंसी का दोष है. पित्त भी बहुत लाइट होता है नेचर में, और इसकी जो गति होती है वो सर गति होती है. जैसे वात जो होता है ना, आप एक 5 साल के बच्चे को बोलेंगे यहाँ से वहां चलो, वो जो गति से चलेगा वो वात दोष है. ठीक है ना. फिर आप एक युवा को बोलेंगे, 40-45 साल के व्यक्ति को, कि आप यहाँ से यहाँ चलो, वो जिस गति से चलेंगे वो पित्त है. फिर आप 65 वर्ष के ऊपर किसी व्यक्ति को, या 70 वर्ष के ऊपर के किसी व्यक्ति को बोलेंगे आप यहाँ से यहाँ चलो, वो जो गति होगी चलने की, दैट इज कफ. बहुत मंद गति होती है, न के बराबर. ठीक है ना. तो वात जो होता है वो भी लाइट होता है नेचर का, और थोड़ा सा स्निग्ध होता है. जैसे पित्त मैंने बताया, पित्त जो है वो भी लघु होता है नेचर का. और जैसे रुक्ष होता है वात, उसके बिल्कुल विपरीत, जस्ट अपोजिट टू द एयर एलिमेंट इन योर बॉडी, पित्त इज क्वाइट ऑयली इन नेचर. ओके. वात इज ड्राई इन नेचर, पित्त इज ऑयली इन नेचर, एंड कफ इज स्टिक इन नेचर. तो कुछ लोगों का आपने कभी स्किन देखा, योर स्किन हैज अ ग्रेट लस्टर और ग्रेट शाइन. ऐसा लगता है ना, हम किसी को कॉम्प्लीमेंट कभी कभी देते हैं, व्हेन यू लुक एट समवन एंड यू फाइंड दैट देयर इज सम डिफरेंट काइंड ऑफ लस्टर और सम डिफरेंट काइंड ऑफ शाइन ऑन दैट पर्सन's फेस. व्हाई इज इट सो? या, that luster, that all shine, or that aura you see na, that because of pitta. Okay. बिकॉज उसका गुण होता है, स्निग्ध होता है, वो स्नेह वाला होता है ना. और सरगति वाला होता है, द्रव होता है. तो उसका थोड़ा सा जो जैसे कि विशद होता है, वात जो है वो हार्ड नेचर का विशद होता है, और पित्त जो है वो द्रव होता है, इट्स क्वाइट लिक्विड इन नेचर. ओके. फिर इसके बाद में आता है कफ दोष. दोनों दोष से एकदम डिफरेंट कफ दोष. कफ दोष भी जो होता है
हैवी होता है नेचर में, इट इज़ वेरी कोल्ड इन नेचर, हम लोग को पता भी होता है। जब अक्सर जुकाम होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग नॉर्मली, क्या बोलते हैं? कफ हो गया। अरे कफ तो होता ही है हमेशा से बॉडी में, वो कुछ नई बात नहीं हो गई, इट इज ऑलवेज देयर इन योर बॉडी, इट इज जस्ट दैट योर कफ हैज विटिएटेड, दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग दिस। उसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं कास, श्वास कास, है ना? तो कफ इज ऑलवेज देयर। कफ जो होता है वो गुरु होता है। अब आप, जब मैं आपसे कफ दोष के बारे में बात करी, आप इमेजिन करो दैट वाटर एलिमेंट, यू शुड इमेजिन वाटर एलिमेंट को। आप किस तरह से इमेजिन करिए कि आप जब बहुत देर पानी में रहते हैं तो कैसा हो जाता है बॉडी, स्किन कैसा हो जाता है, हाउ डू यू फील द वाटर, दैट्स हाउ द कफ इज, स्लाइमी एंड स्टिकी, so that's how the cough is in body, and heavy, yeah, definitely. Vata and Pitta both doshas are very light in nature, but opposite to them, cough is very heavy in nature. ठीक है ना? Then ये slimy होता है, sticky होता है, श्लक्ष्ण है. It is the most stable doshas. One of the stable dosha. वात जो होता है वो बहुत चंचल होता है. पित्त जो होता है वो मध्यम गति का होता है. और कफ, आप जब वात प्रकृति वाले व्यक्ति को देखेंगे ना, तो उसको हर चीज में बहुत हैसलनेस रहती, बहुत हड़बड़ी रहती उसे. आप लोगों में से भी कोई होगा, आप लोग ऑब्जर्व करिएगा आप आपस में एक दूसरे को, अरे यार आपको तो दिन भर बस हड़बड़ी रहती है, यहाँ चलो वहां चलो, ये करो करो, दैट इज बिकॉज ऑफ वात. और एक एक व्यक्ति होता है प्रॉपर प्लानिंग, टाइमिंग, एग्जैक्ट टाइमिंग पे पहुंचना है, एग्जैक्ट प्लानिंग के साथ पहुंचना है, एंड दे हैव अ प्लानिंग ऑफ द डे कि दिस इज माई टाइम टेबल, दिस इज माई स्केड्यूल एंड आई हैव टू स्टिक टू दिस. दैट इज पित्त. तो कफ कैसा होता होगा? आराम से देखेंगे, मुझे कोई जल्दी नहीं, ठीक है ठीक है, आप सब पहले निकल जाओ, हम आराम से आएंगे. क्योंकि वो स्थिर होता है, उसकी गति मंद होती है. तो इसलिए कफ, जब आप इस प्रकार की प्रकृति वाले लोगों को देखेंगे ना, आयुर्वेद में 7 प्रकार की प्रकृति बताई गई है. वातज प्रकृति, पित्तज प्रकृति, कफज प्रकृति, वात पित्तज, वात कफज, कफ वातज, और एक त्रिदोषज प्रकृति. प्रकृति क्या होती है? हाँ, आपका जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है बॉडी का सिंस बर्थ. एट द टाइम ऑफ बर्थ आपका जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन रहा होगा रिगार्डिंग दोषास, दैट इज योर प्रकृति. तो कोई व्यक्ति होता है, समवन, इफ समवन इज हैविंग, मतलब त्रिदोष है, तीनों दोष साम अवस्था में रहना चाहिए, बैलेंस स्टेट में रहना चाहिए. पर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. कोई एक दोष अगर बड़ा हुआ ज्यादा है तो वो दोष आपकी प्रकृति को रिप्रेजेंट करता है. जैसे किसी व्यक्ति का अगर स्वभाव से वात बढ़ा हुआ है तो वो वातज प्रकृति को रिप्रेजेंट करेंगे. किसी का पित्त बढ़ा हुआ है तो दैट पर्सन विल रिप्रेजेंट टू पित्तज प्रकृति. किसी का कफ बढ़ा हुआ है तो दैट पर्सन विल रिप्रेजेंट द कफज प्रकृति. पर ऐसा अमूमन पाया नहीं जाता कि किसी भी व्यक्ति का सिर्फ एक ही दोष बढ़ा हुआ हो. फिर क्या पाया जाता है? फिर आप क्या ऑब्जर्व करते हो? या यू ऑब्जर्व द मिक्स.